Hello guys, today we are going to start a new chapter called mining method. So in first section we will talk about the underground coal mines. Okay. So here's some data about the Indian coal. Indian coal generally has a high ash content and low calorific value. So what does it mean that it has high ash content? When we burn any coal block, there is always a ash, right? Uh, so that much quantity should be minimum for a good coal. But in India, the coal we got in India has the high ash content. Okay, and it has low calorific value. Low calorific value means it burns more to produce less energy. So it is basically low calorific value. So basically most of the Indian coal is coking non-coking coal. So we get coking coal through the import. Okay. Major Indian coal fields are found in Bihar, West Bengal, and Madhya Pradesh. So there are four types of coal. First one is lignite, second one is subbituminous, third one is bituminous, fourth one is anthracite. Okay. Characteristics of coal. Here we have uh, here it is being found that जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्राउंड में, जैसे दिस इज फ्रॉम 0.2 to 1.5 kilometer. Lignite we found in this range, and subbituminous we found below the lignite 1.5 to 2.5 kilometer, and bituminous we found it below the subbituminous, that is 2.5 to 6 kilometer. Anthracite below the 6 kilometer of depth, right? So the in lignite the moisture content is maximum, and in anthracite moisture content is minimum. So in good quantity of or good quality of coal, moisture content should be minimum. And talking about the fixed carbon in lignite, there is minimum amount of fixed carbon, and in anthracite there is a maximum amount of fixed carbon. So in a good coal, what we have to in that coal, first one is moisture content should be lowest in the good quality of coal. Second one is fixed carbon content should be maximum in good quality of coal. Third one is calorific value should be high in best quality of coal. And talking about the volatile matter, in good quality of coal, the volatile metal should be the lowest. Okay. So कहना ये चाहते हैं कि चार टाइप के हमारे पास कोल होते हैं. फर्स्ट वन इज़ लिग्नाइट, सेकेंड वन इज़ सब बिटुमिनस, थर्ड वन इज़ बिटुमिनस, फोर्थ वन इज़ एंथ्रासाइट. लिग्नाइट से पहले एक और होता है, उसको बोलते हैं पीट. वो लोवेस्ट ग्रेड का कोल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि आप लिग्नाइट से एंथ्रासाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेड आपका लो ग्रेड से हाई ग्रेड हो रहा है. अब लो ग्रेड का मतलब क्या है? लो ग्रेड का मतलब है लो कैलोरीफिक वैल्यू, कि हमें कुछ सर्टेन अमाउंट कोयला जलाने में बहुत कम एनर्जी मिल रही है, और उतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ कोयला जलाने में हमें एंथ्रासाइट में हाईएस्ट एनर्जी मिलेगी. दैट इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. ओके. अब हाई वोलेटाइल मेटल प्रेजेंट है लो ग्रेड में. इसका मतलब ये है कि कोयला तो है, बट उसमें वोलेटाइल मेटल भी इतना है, उससे हम एनर्जी कुछ ले नहीं पा रहे हैं, बट वो कोयले में प्रेजेंट है. और सेम थिंग लो वोलेटाइल मेटल एंथ्रासाइट है. इसमें जो लो ग्रेड होगा उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होगा हाई होगा. ठीक है. इसमें लो मॉइस्चर कंटेंट होगा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट का भी कोई काम नहीं है हमारे कोयले में. एंड द लास्ट वन इज़ फिक्स्ड कार्बन. फिक्स्ड कार्बन का काम है ना, क्योंकि कार्बन ही तो चाहिए. जो कोयला है बेसिकली वट इज़ द कोल, इट इज़ बेसिकली कार्बन, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम दी थ्रू द बर्निंग ऑफ द कार्बन. सो इसमें लो फिक्स्ड कार्बन रहेगा, इसमें हाई फिक्स्ड कार्बन रहेगा. ओके. सो ये बैंडेड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल देख लेना. ठीक है, कि कोयला किस किस चीज़ों से बना होता है, बेसिकली में क्या होते हैं, बस याद रख लेना, मे भी क्वेश्चन में पूछा जा सके. साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल. तो इसमें एक स्टीम कोल रहता है, एक रबल कोल रहता है, एक स्लैग कोल रहता है. ऑल दिस टाइप ऑफ कोल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कोल. ओके. तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं. सोब एनालिसिस ऑफ कोल आता है. ठीक है. दो टाइप के एनालिसिस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अल्टीमेट एनालिसिस, सेकंड वन इज़
प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग डील करते हैं विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कोल, विथ कार्बन प्रेजेंट इन द कोल, विथ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कोल, सल्फर प्रेजेंट इन द कोल, nitrogen present in the coal, and the ash present in the coal. Okay, and in case of proximate analysis we talk about the fixed carbon present in the coal, moisture present in the coal, ash present in the coal, and volatile metal present in the coal. Okay, so talking about the ultimate analysis of coal and coke is defined as the determination of the carbon, hydrogen, sulfur, and nitrogen in the material and expressed on a moisture free basis as found in the gaseous products of its complete combustion. So हम जब अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं तो हमें एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, जो कोयला है, वो मॉइस्चर फ्री बेसिस में, मॉइस्चर फ्री होगा तो कोई भी गैसेस प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना कंप्लीट कंबशन के बाद। गैसेस प्रोडक्ट क्या होता है? जो मॉइस्चर फ्री हो गया तो उसमें गैसेस प्रोडक्ट कहाँ से आएगा फिर? एश इज़ डिटरमाइंड in proximate analysis and is calculated on moisture free basis. So basically ultimate analysis is depending upon the moisture free basis. Okay, so oxygen, percentage of oxygen can be estimated through this formula. इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है? बस ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, proximate analysis covers the determination of moisture, volatile matter, fixed carbon, and ash in coals and cokes, and is used to establish the rank of coals, to show the ratio of combustible to incombustible material, or to provide the basis for buying and selling. बेसिकली प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हमें क्या बताता है कि रेशियो बताता है कंबस्टेबल टू नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल जितना मेटल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा, इट मीन्स, ठीक है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो उसी से हमको क्वालिटी पता चलेगी ना कोल की कितनी, तो उसी के बेसिस में हम सेल करेंगे या बाई करेंगे। एंड अदरवाइज एवेल्युएटिंग कोल फॉर वेरियस पर्पसेज। Thus it is important to both the suppliers and users of the coal to have a rapid, accurate, and reliable procedure for obtaining proximate analysis. The fixed carbon percentage is obtained from the following equation. So fixed carbon is equals to 100 minus moisture plus ash plus volatile matter. So there is another formula. Moisture percentage can be determined as, मॉइस्चर परसेंटेज कैसे देखेंगे हम? जैसे हमारे पास एक कोयले का ब्लॉक है, क्यूब है, ठीक है, उसमें कार्बन भी है, फिक्स्ड सब कुछ है, उसमें फिक्स्ड कार्बन भी है, मॉइस्चर भी है, एश भी है, वोलेटाइल मेटल भी है। अब हमें निकालना है इसमें मॉइस्चर कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम वेट ले लेंगे, इनिशियल वेट मानो इसको हमने वेइंग मशीन में रखा, वहाँ से हमारा इनिशियल वेट आया m0। फिर हमने इसको ड्राई किया तो उससे कुछ वेट लूज़ होगा ना, जैसे आप कपड़ों को ड्राई करते हो धोने के बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाता है, तो वैसे इसको हम ड्राई करेंगे तो इसका भी मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाएगा। सो इसका कुछ वेट हो जाएगा m1। सो बेसिकली जो मॉइस्चर था वो कितना है, मॉइस्चर परसेंटेज कितना था, m0। इनिशियली ज़्यादा वेट रहेगा ना क्योंकि इसमें मॉइस्चर था, फिर हमने उसको ड्राई कर दिया तो मॉइस्चर उड़ गया, तो बेसिकली m0 माइनस m1 इज़ दी weight of the moisture that was initially present in the block divided by initial mass, ठीक है। ब्लॉक कंटेनिंग मॉइस्चर इंटू 100 करेंगे तो मॉइस्चर का परसेंटेज आ जाएगा। तो वही चीज़ है, देखिए, वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग द सैम्पल दैट इज़ m1 माइनस m0, इनिशियल वेट ऑफ द सैम्पल दैट इज़ m0 and multiply by 100 will be from this you can get the percentage of moisture, ठीक है। And ash is the weight of the residue obtained after complete combustion of coal sample. This can be determined as this formula. So basically what happens when we burn a block of a coal, ठीक है, तो जो मॉइस्चर होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वॉलेटाइल मेटल जो होंगे वो भी उड़ जाएंगे, जो फिक्स कार्बन होगा वो जल जाएगा और उससे पूरी एनर्जी हम निकाल लेंगे, जो नहीं जलेगा वो एक चीज़ होगा, वो होगा ऐश,
ठीक है। जो राख बची रहती है बेसिकली वो राख जल के नहीं होती, वो उसमें कंटेंट रहता है जो नहीं जल पाता है, उसको हम ऐश बोलते हैं। जो अगर पूरा बर्न हो गया कुछ, उसकी ऐश नहीं रहेगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट जो पूरा नहीं जल पाया उसको ऐश बोलते हैं। तो बेसिकली ऐश परसेंटेज निकालना भी बहुत ईजी है कि कोई भी एक ब्लॉक है कोयले का, इनिशियल वेट है उसका m0, उसको हमने जला दिया तो उसमें अब जितना उसका वेट बचा जलने के बाद वो सिर्फ ऐश है, ठीक है, तो Ma आ गया। सो बेसिकली परसेंटेज ऑफ ऐश कितनी रहेगी कि जो मास ऑफ ऐश है जो आखिरी में जलने के बाद बची है, डिवाइडेड बाई इनिशियल मास इनटू 100, ठीक है, सेम फॉर्मूला है। मास वेट ऑफ रेसिड्यू डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। And same we can find the volatile metal is the weight loss obtained on heating coal sample in the absence of air. This can be determined as weight loss due to volatile metal divided by initial weight of sample into 100, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास मॉइस्चर का परसेंटेज भी निकल गया, ठीक है, हमारे पास ऐश का परसेंटेज भी निकल गया, हमारे पास वोलेटाइल मेटल का परसेंटेज भी निकल गया। तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कार्बन प्रेजेंट इन एनी कोल ब्लॉक, ओके। ठीक है, सो इफ़ यू एनालाइज ऑन ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट शुड बी ज़ीरो। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ड्राई बेसिस पे हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मॉइस्चर कंटेंट सीधे सीधे ज़ीरो है बिफोर एनालिसिस, ठीक है। सो देयरफॉर ऑन ड्राई बेसिस फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज इज डिटरमाइंड बाई 100 माइनस वोलेटाइल मेटल प्लस ऐश प्लस मॉइस्चर कंटेंट भी होता था, ठीक है, यहाँ पे जैसे है, बट अभी ड्राई बेसिस में है तो वो नहीं है, तो हम ये दोनों को करेंगे। फिर जो ऐश परसेंटेज आएगी और वोलेटाइल मैटर शुड बी डिटरमाइंड एज दिस फॉर्मूला। ऐश जो होगी, ऐश का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस मॉइस्चर इनटू 100, और वोलेटाइल मेटल का जो होगा वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज अपॉन 100 माइनस मॉइस्चर का परसेंटेज इनटू 100। इफ़ वी एनालाइज ऑन ड्राई ऐश फ्री बेसिस, अब ड्राई है तो मॉइस्चर कंटेंट ज़ीरो, ऐश फ्री तो परसेंटेज ऑफ ऐश भी ज़ीरो, तो फिक्स्ड कार्बन ड्राई बेसिस क्या होगा 100 माइनस वोलेटाइल मैटर, देन बोथ द ऐश एंड मॉइस्चर कंटेंट शुड मेड ज़ीरो बिफोर एनालिसिस, देयरफॉर ऑन ड्राई ऐश फ्री बेसिस फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज डिटरमाइंड बाई दिस फॉर्मूला। सो फिर हम ऐश परसेंटेज और वोलेटाइल मेटल परसेंटेज निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूले से ठीक है। हाँ, सो लेट्स सी एग्जांपल, ठीक है, ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। सो ये कुछ गूगल कर रखा है मैंने आपके लिए, इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं जो बोर्ड एंड पिलर से रिलेटेड हैं। बेसिकली आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये अंडरग्राउंड है, जो ये फ़ोटो आपको दिख रही है ये अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर कुछ ओवरबर्डन है, जैसे ये हमको ओपन लग रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ ओवरबर्डन है। सो यहाँ पे एक बोर्ड है, जैसे अगर इस फोटो की हम बात करें, इस फोटो की अगर हम बात करें सो इसमें कोल सीम दिखा रही है, जितनी ब्लैक वाला एरिया है ये कोल सीम है, इसमें लिखा भी है कोल सीम है। उसमें हमने एक टनल बनाई है, ठीक है, टनल जो एक यहाँ पे मैन दिख रहा है, उसके राइट हैंड साइड से एक जो आ रही है जहाँ पे एंट्रेंस टनल इसको नाम दिया है वो टनल है, वहाँ से हमने कोल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और हमने बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्लॉक्स को छोड़ दिया जो कि सपोर्ट दे रहे हैं ऊपर रूफ को, जिसको हमने बोला है पिलर ऑफ अनमाइंड कोल, ओके। बस बेसिकली बोर्ड एंड पिलर में यही चीज़ है। सो इसमें एक टेबल है जो आपको याद रखनी है। टेबल है डायमेंशन ऑफ पिलर एंड गैलरीज एट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है, एज पर रेगुलेशन नंबर 99 ऑफ द CMR कोल माइन रेगुलेशन 1957 इन, ठीक है। सो
ये है कि ये डेप्थ ऑफ द सीम दी है, ये पूरा चीज़ जो है ये डेप्थ ऑफ द सीम है। लाइक सरफेस से कितना है, अगर सरफेस से सीम जो है 60 मीटर से कम में है, ये चीज़ है। अगर डेप्थ 60 मीटर से 90 मीटर है तो ये है। 90 मीटर से 150 मीटर, 150 मीटर से 250 मीटर, 250 मीटर से 360 मीटर, या तो डेप्थ 360 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, ये डेप्थ कहाँ से है, ये हमारा कोई सरफेस हो गया। लाइक ये हमारा कोई सरफेस हो गया और इसके नीचे कोई लेके सीम हो गई। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है बेसिकली इस डेप्थ की बात हो रही है वो। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द गैलरीज, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द सीम हम विड्थ ऑफ द गैलरीज डिसाइड करेंगे। ठीक है, विड्थ ऑफ द गैलरी डिसाइड करेंगे। अगर विड्थ ऑफ द गैलरी 3 मीटर से कम है और 3.6 मीटर से कम है और 4.2 मीटर से कम है और 4.8 मीटर से कम है। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिलर शुड नॉट बी लेस देन दिस। सो ये टेबल आपको क्रैम करनी है, आपको रटनी है उसमें, क्योंकि ऐसा आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। क्वेश्चन ये आएगा इफ़ द डेप्थ ऑफ द सीम इज़ 200 मीटर, सो 200 आपको टेबल देख के बताना पड़ेगा 200 मीटर डेप्थ कहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली इस रेंज में आ रही है 200 मीटर। ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ द गैलरी इज 3.8 मीटर्स। सो 3.8 मीटर्स कहाँ आ रहा है, 3.8 मीटर्स इसमें आ रहा है। ठीक है, सो द फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिलर्स। ठीक है, सो फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिलर्स। सो बेसिकली हम देखेंगे कि ये चीज़ जो है यहाँ पे है और ये चीज़ यहाँ पे है। सो बेसिकली सेंटर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिलर्स शुड नॉट बी लेस देन 30.5 मीटर। ठीक है, 30.5 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टेबल काम आएगी और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब जैसे हम अंडरग्राउंड गए, हमने गैलरीज एक्सट्रैक्ट करनी स्टार्ट करी, कुछ पिलर हमने छोड़े, तो हमको कितना मटेरियल निकालना है, कितना मटेरियल पिलर्स में छोड़ना है, बेसिकली दैट थिंग इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कोल एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू टोटल इन सीटू वॉल्यूम ऑफ द कोल। ठीक है, मतलब रेशियो होता है कि जितना कोयला हमने एक्सट्रैक्ट किया टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोल। ठीक है, सो द साइज ऑफ द पिलर इज A1 क्रॉस A2 and the width of the gallery in dip and rise direction are B1 and B2। ये डिप जो डायरेक्शंस हैं और राइज डायरेक्शन से आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली कुछ नहीं है, अंदर जाके हम नॉर्थ साउथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अंदर जाके हम यूज़ कर रहे हैं डिप और राइज का। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। बेसिकली इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आपको एग्जाम्पल बताऊँगा तो हो जाएगा। बेसिकली क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पिलर ये है, ठीक है, ऐसे करके एक पिलर यहाँ पे है, एक पिलर यहाँ पे है, ठीक है, एक नीचे है, एक यहाँ पे है। सो बेसिकली वो कह रहा है ये चीज़ जो है, जो इसकी ये वाली लेंथ है वो है A1, ये वाली लेंथ है A2। ठीक है, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, ये तो पिलर का साइज़ हो गया, बट एक जो पिलर है ना वो कितना एरिया ले रहा है, विड्थ है जो गैलरी है उसका आधा यहाँ से लेगा, विड्थ ऑफ गैलरीज का आधा यहाँ से लेगा, विड्थ ऑफ गैलरीज का आधा यहाँ से लेगा, विड्थ ऑफ गैलरीज का आधा लेगा, है ना। जो दूसरा पिलर है वो आधी विड्थ यहाँ से ले लेगा, आधी विड्थ यहाँ से, आधी विड्थ यहाँ से, आधी विड्थ यहाँ से, ये सब ऐसा चल रहा समझ में आ रहा है ना। आधी विड्थ यहाँ से, आधी विड्थ ये ले लेगा, ये सब लेगा, डिवाइडेड है बेसिकली ये। सो बेसिकली A1 A2 वर दी लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पिलर,
बट जितना वो एरिया अपने ऊपर रख रहा है, जितना सपोर्ट कर रहा है एरिया, वो कितना है, ये फुल है A1 प्लस B1/2, ये क्योंकि ये जो गैलरी की विड्थ है B1 है, ओके। B1/2 यहाँ से ले रहा है एंड B1/2 यहाँ से ले रहा है, तो ओवरऑल B1 हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ वही है कि यहाँ से भी ये ले रहा है B2/2 और यहाँ से भी ले रहा है B2/2, बिकॉज ये वाली गैलरी की जो विड्थ है वो है B2, ठीक है। सो बेसिकली एक जो पिलर है ये कितना एरिया सपोर्ट कर रहा है, A1 प्लस B1 लेंथ में, A2 प्लस B2 आपकी विड्थ में, ठीक है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको हम पिलर बना रहे हैं A1/A2 का, ठीक है, जो पहले है A1 प्लस B1/A2 प्लस B2 का। सो बेसिकली हम कितना एरिया कम कर रहे हैं, पहले था A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2, ये इनिशियल एरिया था, इनिशियल एरिया, ठीक है। एंड फाइनल एरिया कितना बचा एक्सट्रैक्शन के बाद, फाइनल एरिया बचा A1 क्रॉस A2, ठीक है। एक हमारे पास सिर्फ पिलर बचा है। सो कितना हमने रिड्यूस कर दिया एरिया, या एरिया एक्सट्रैक्टेड, एरिया इज द इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया। इनिशियल एरिया वाज A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 माइनस A1 A2, ठीक है। देखो, सो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन रहेगा जितना इनिशियली एरिया था A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 माइनस जितना लास्ट में बचा A1 मल्टीप्लाई बाई A2 डिवाइडेड बाई जो इनिशियल एरिया था, ठीक है। जितना बचा, जितना एक्सट्रैक्ट किया अपन जितना इनिशियल था, दैट वाज दी परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा है कि वेयर A1 एंड A2 आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पिलर एंड B1 एंड B2 आर द साइज ऑफ द गैलरीज इन डिप एंड राइज डायरेक्शन। सो बेसिकली डिप ये वाली डायरेक्शन है डिप, इसकी परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन है राइज, ठीक है। सो फॉर स्क्वायर पिलर एंड सेम गैलरी साइज, अब ऐसा है कि यहाँ पे स्क्वायर पिलर हैं, बेसिकली A1 A2 नहीं है, वो उसकी लेंथ भी A है, मतलब A1 इज टू A2 इज टू A है, एंड जो विड्थ ऑफ द गैलरीज है वो B1 इज टू B2 इज टू B है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में जो एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, एरिया ऑफ आ जाएगा A प्लस B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। सो एक ट्रिब्यूटरी एरिया का भी फॉर्मूला है, अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आई थिंक दैट एट दैट टाइम यू विल गेट इट वेरी राइटली, ओके। सो ट्रिब्यूटरी एरिया का फॉर्म वो क्या चीज़ है, इट इज़ एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट गैलरी शोन इन फिगर। ट्रिब्यूटरी एरिया जो है A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 माइनस A1 A2, बेसिकली ट्रिब्यूटरी एरिया एक्सट्रैक्टेड एरिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। So let's इसमें so the question says in a board and pillar mining the width of the pillar and galleries are 19.5 meter and 3 meter respectively. So जो width of the pillar है ये है 19.5 मीटर by 19.5 मीटर and the width of the gallery दी है 3 मीटर, ठीक है। सो वो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज, सो बेसिकली इनिशियल एरिया वॉज 19.5 प्लस
3 का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन फाइनल एरिया ऑफ द पिलर was 19.5 meter का square. Okay, so the percentage of extraction was the initial area minus final area divided by initial area मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो जितनी वैल्यू आएगी वो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा। एंड जो इसमें ट्रिब्यूटरी एरिया होगा वो होगा इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया, दैट इज 22.5 स्क्वायर माइनस 19.5 का स्क्वायर। इसमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है लोड एक्टिंग ऑन पिलर, कि एक पिलर में कितना लोड हो रहा है। उसका एक फॉर्मूला है गामा इंटू डी इंटू 1/1 - r, बेसिकली गामा डी अपॉन 1 - r। आर वॉज द एक्सट्रैक्शन परसेंटेज, उसको हम 1 से माइनस करेंगे तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में गामा इंटू डी आ जाएगा। सो बेसिकली आर इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, डी इज द डेप्थ ऑफ द पिलर फ्रॉम द सरफेस, ए इज़ द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द पिलर, बी इज़ द विड्थ ऑफ द गैलरीज एंड गामा इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सुपर इनक्यूबेट rock. Talking about the strength of the pillar, the strength of the pillar can be determined by the Salomon and Munro. Remember this thing. Using the Salomon and Munro formula, we find out the strength of the pillar, and the formula is K multiplied by W की power alpha upon L की power beta. ठीक है, so S is the strength of the pillar in LB by inches square, K is the constant and its value is 1320 LB by inches square, W is the width of the pillar in feet, L is the height of the pillar in feet, so and alpha is the 0.46 and beta is the 0.66. So factor of the safety of the pillar, so basically what does it mean factor of safety? Factor of safety of pillar is given by strength of the pillar upon load acting on the pillar. कि कोई भी पिलर है, ठीक है, उसकी एक क्षमता होगी कि कितना स्ट्रेंथ वो झेल पाए। ठीक है, लेट्स से वो झेल पा रहा है 100 न्यूटन इज द स्ट्रेंथ, एंड एक लोड है कि उसमें ऊपर से कितना लोड पड़ रहा है। ठीक है, एक लोड पड़ रहा है, लेट्स से वो एल से नोट कर रहे हैं हम लोड को। ठीक है, so load is basically 50 Newton, so factor of safety will be strength by load, that is 2 FOS। अब अगर देखो स्ट्रेंथ भी उसका 100 न्यूटन है कि वो मैक्सिमम 100 न्यूटन का लोड ले सकता है, और हमारा लोड भी 100 न्यूटन का है कि उस पर लोड भी 100 न्यूटन का पड़ रहा है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 100/100 हो जाएगी, दैट इज़ 1। ठीक है, बट अगर स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया हमारा लोड तो क्या होगा? कोई एक पिलर है, उसकी स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन और ऊपर से लोड जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 200 न्यूटन का। ठीक है, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हो जाएगी वो हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन लोड, दैट इज़ 0.5। सो बेसिकली मतलब ये है कि अगर स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड हो जाएगा तो पिलर जो है फेलियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है 100 न्यूटन से ऊपर कोई भी लोड लेने की। सो बेसिकली FOS जो मिनिमम रहेगा ना वो 1 रहेगा। अगर स्ट्रेंथ 100 है और लोड आपका 101 हो गया, सो FOS बेसिकली 1 से कम हो जाएगा, और जैसे FOS 1 से कम हो जाएगा वैसे ही जो पिलर है उसका फेलियर हो जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर का फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, ये हम डाल देंगे ऊपर,
और लोड का जो फॉर्मूला है बेसिकली ये हम डाल देंगे डिनोमीटर में। सो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हमको मिल जाएगा टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द पिलर।